Okay. Now I think this is visible. Audio and video both are clear. Class 12th. It is clear. Okay, all clear. Now let us start. What we have studied in last term. Last term में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? थोड़ा सा याद दिला हमको. What we have studied? We have to study total internal reflection. Huh? Total internal reflection. Yes. Now we will start again. What is total internal reflection? As you already written that total internal reflection is what? Okay. What is total internal reflection? I think it is clear now. आप लोगों को होमवर्क में इन्होंने किया होगा. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा होगा. मैं इसको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ. उससे आप लोगों को बहुत क्लियर हो जाएगा. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज व्हाट? Total internal reflection when light goes from one medium to another medium, okay, at incident angle, it is critical angle when reflected rays makes an angle 90 degree with a norm. This particular angle is called critical angle, and angle greater than that, when the angle of incidence is greater than a critical angle, means the ray will be reflected back into that medium, in the same medium. This is the phenomenon of reflection. That's why it is called total internal reflection. Why it is called total internal reflection? Why total term is used? It is internally reflected. Now the term should be internal reflection. But why it is treated as total internal reflection? ध्यान रखना कि जब भी यहाँ पे कहीं भी रिफ्रैक्शन होता है, जब भी कहीं पे भी रिफ्रैक्शन होता है, तो वहां पे ध्यान रखना, वहां पे ये रिफ्रैक्शन हो रहा है तो वहां पे बहुत ही माइनर सा रिफ्लेक्शन भी हो रहा है. When refraction occurs, there will be a minute reflection takes place. Okay? जब रिफ्लेक्शन होता है तो वहां पर रिफ्रैक्शन होना जरूरी नहीं है, लेकिन जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है वहां पे रिफ्लेक्शन होना जरूरी है. होता है, बहुत ही थोड़ा सा होता है, लेकिन तो ऑलरेडी यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा था, बट जब ये वाली जो रिफ्रैक्टेड रे थी ये भी रिफ्लेक्ट होने लगी है, यानी कि टोटली रिफ्लेक्ट होने लगी है, इसलिए इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. आई थिंक क्लियर हो गया होगा. इसके लिए दिस इज म्यू 1 एंड दिस म्यू 2. आप ऐसे लिख सकते हो म्यू आई और यू म्यू आई, म्यू आर साइन आई, दिस इज आई, म्यू आई साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू आर साइन 90. जब ये क्रिटिकल एंगल पे होगा, ये आईसी पे होगा क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए, तो साइन IC will be equals to mu R upon mu1 because sin 90 is 1. Mu R, it is generally air, that is 1, and it is generally mu, it will be 1 upon mu. Sin IC equals to 1 upon mu. एक इसमें conditions होती हैं. What are the conditions? Condition क्या होती है कि कंडीशन इसकी क्या होती है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर करेगा. इसकी कंडीशन क्या होती है? देखो यहाँ पे रेयरर टू डेंसर टू रेयरर रिफ्लेक्शन में डेंसर टू रेयरर आना चाहिए, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए और क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा होना चाहिए, और आपका रेयरर से डेंसर से रेयरर में जाना चाहिए, तब ऐसा पॉसिबल होगा. अगर वो रेयरर से डेंसर में जाएगा तो कभी भी PIR नहीं होगा. ओके. इसके बाद हम लोग बहुत सारी चीजें बात करेंगे थोड़ी. स्कैटरिंग भी आप लोगों ने पढ़ा. स्कैटरिंग बेसिकली क्या होता है?
स्कैटरिंग ऑफ लाइट ने लिखा है, होमवर्क में दिया था ना. यस और नो? I have given you in the homework that uh, scattering of light. What is basically scattering of light? Anyone? What is scattering of light? Okay. We were talking about total internal reflection. As we have discussed total internal reflection, now some question is there. Write down one question. Find the value of critical angle for a material. Find the value of critical angle for a material of refractive index under root 3. Means the material have refractive index. The material have refractive index. This material, this is under root 3, and this medium is already given, that is 1. Means ray is going from denser to rarer. Denser to rarer, we know that critical angle sin IC critical angle, that is equals to 1 upon mu, it is 1 upon root 3. When sin IC is equals to 1 upon root 3, IC will be equals to sine inverse 1 upon root 3. Okay, this is your answer. This is your answer. Okay. Now let us start. Thin lenses, spherical lenses, you can say, spherical lenses. We have discussed about reflection, and we have discussed about refraction also. But now we will discuss some special cases of refraction, that is spherical lenses. Write down heading spherical lenses. Spherical lenses. A lens is a piece of refracting medium. A lens is a piece of refracting medium bounded by two surfaces. Bounded by two surfaces. Bounded by two surfaces. At least one of which is a curved surface. At least one of which is a curved surface. At least one of which is a curved surface. Is a curved surface. Okay. There are too many types of lenses is there. Types of lenses, too many. I'm not going to discuss all here. It is a lens. यहाँ से आप देखोगे एक बार यहाँ से देखोगे, ये लेगा कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, लिख लेना यहाँ पे, इस कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स और बाई कॉन्वेक्स, इसको हम लिखेंगे बाई कॉन्वेक्स और सिंपली कॉन्वेक्स.
सिंपली कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, और सिंपली कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स भी कहते हैं इसको। दूसरे पे लिखना है यहाँ पे इस तरह से, इधर से देखेंगे प्लेन, इधर से लिखेंगे कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेन ओ कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, यस। सत्यम एंड अंश, 100 MB ओवर, ओके, व्हाट आई कैन डू, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी लोग लिखे क्या कर सकता है, जब तक हो तब तक, जब तक एग्जॉस्ट नहीं हुआ आपका डेटा तब तक आप यहीं रहो। ये आपका हुआ थर्ड पॉइंट, दैट इज, इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव। इधर यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, कॉन्वेक्स, इधर से देखेंगे कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो। हाँ पता है, मेरी एचडी आती है, और वहां भी अगर एचडी होगा तो जा सकता है डेटा, नो 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 प्रॉब्लम, पता है मुझे, इट मे बी। कॉन्वेक्सो कॉनकेव, या हम इसको कॉनकेवो कॉन्वेक्स भी कह सकते हैं, दोनों बातें हो सकती है। तो बहुत टाइप के हैं, बहुत टाइप के लेंसेज हैं। एक और लिख लो लास्ट यहाँ पे, ये होता है हमारा, से देखेंगे कॉनकेव, इधर से देखेंगे कॉनकेव, कॉनकेवो कॉनकेव, कॉनकेवो कॉनकेव, और बाई कॉनकेव, और सिंपली कॉनकेव लेंस, सिंपली कॉनकेव लेंस। ओके, अब हम जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इसको याद रखना। बाकी लोग, सभी लोग हैं यहाँ पे, सभी लोग हैं, यस। आज हम लोग जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड एग्जाम में लगभग लगभग सारे पेपर में होती है, इसलिए इसको याद रखना। अगर रे ऑप्टिक से कुछ कोई डेरिवेशन आती है तो इसमें मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो है, तीन चार जो है, उनमें से एक डेरिवेशन ये है, उसको लिखो, राइट डाउन द हेडिंग, रिफ्रैक्शन थ्रू spherical surface, refraction through, refraction through spherical surface, refraction through spherical surface। यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप लोग भी साथ साथ बनाना डायग्राम। दिस इज द surface, one object is placed here and the ray is going here, and this is the normal, means it is coming from center of curvature, uh, it is I, and the image will form here, the image will form here, this angle is beta, this angle is let us suppose gamma, and this angle is alpha, this is gamma, this is gamma, and you know, angle between normal, this is the normal angle between normal and refracted ray, it is what, this is R, and one point here, that is M, and it is N, you can say here, this point will be here, हो गया सबका, समझ गया फिगर आपने।
तो नाम दे देते हैं हम लोग, ये आई है, ये सी है, ये एन है, और ये ओ है, ओ ऑब्जेक्ट है, और ये पी पॉइंट है। दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस पॉइंट इज पी। ओके, यहाँ पे कुछ चीजें हम लोगों को याद रखनी है कि अजम्पशन क्या है, अजम्पशन दैट रेज मस्ट बी पैराक्सियल। उस केस पे भी आया था मिरर वाले में, और यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे तो रेज मस्ट बी पैराक्सियल। रेज पैराक्सियल मीन्स rays are paraxial, that means the rays must be very close to the principal axis, ये बहुत पास में होगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इसी पॉइंट, ये दोनों पॉइंट एक ही माना गया, ठीक है, ऐसा अजम्पशन माना गया है, आपको ये मानना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हम जानते हैं एक होता है हमारा एक्सटेरियर एंगल, ये अगर इस तरह से है, अगर ऐसे है तो ये, दिस इज अल्फा एंड दिस इज गामा। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये एंगल जो हो जाएगा हमारा आई, आई इज द एक्सटेरियर, और एक्सटर्नल एंगल जो कैन से, एक्सटर्नल एंगल आई है, इसलिए हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा, ठीक है, नोट इट डाउन, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। यहाँ पे एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये वाला, दिस इज बीटा and this is gamma and this is r. Here gamma is equals to r plus beta. Here r will be equals to gamma minus beta. I भी कैलकुलेट हो गया और r भी कैलकुलेट हो गया। हम जानते हैं न्यू आई साइन आई इज इक्वल टू न्यू आर साइन आर। यहाँ तो नोट करते रहो, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये दो मीडियम, ये स्फेयर के इधर अलग मीडियम है, ये स्फेरिकल सरफेस के इधर अलग मीडियम। Means this spherical, this curved surface separate the two media. Let us suppose this is mu1 and this is mu2। जहां से रे चल रही है mu1, जहां से रे चल रही है mu2, यहाँ पे mu i और mu r भी कर सकते हैं। सिंपल सा हम जानते हैं कि sin i इज इक्वल टू sin r। अप्लाई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, mu i यानी mu1 sin i is equals to mu1 sin I is equals to mu r, mu r के प्लस हो जाएगा mu2 sin r, mu2 sin r, mu1 sin I, mu1 sin I into इक्वल्स टू mu2 sin r। यहाँ पे चूंकि I बहुत छोटा है, इट इज वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट मीन्स I is very small than sin theta। Sin theta is approximately equals to theta, that means mu1 I is equals to mu2 r। In place of I you can write mu1, in place of I alpha plus gamma is equals to mu2, in place of r you can write gamma minus beta। You can multiply here mu alpha, mu1 into alpha, mu1 alpha plus mu1 gamma is equals to mu2 gamma, mu2 बीटा। यहाँ पे एक साइड कर लेंगे mu1 अल्फा प्लस mu1 अल्फा प्लस mu2 बीटा is equals to mu2 common, you can take common mu2 mu2 sorry, gamma you can take common, gamma is common, and mu2 minus mu1। ये नोट कर लो यहाँ तक, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग।
It is done or not? Okay, done. Ayush, Vasundhara, and Sakshi. Ansh, Amit, Shant, Soumya. Okay, very good. Kashmira, Naitik. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे देख लेना साइन कन्वेंशन कहीं गड़बड़ ना हो रहा हो। प्लस, इट इज प्लस एंड इट इज माइनस। अल्फा, म्यू वन अल्फा, म्यू टू, म्यू वन अल्फा, म्यू वन गामा, म्यू टू गामा माइनस म्यू टू बीटा। ओके, ये म्यू टू बीटा इधर आ गया और ये वाला इधर चला गया, ये वाला इधर चला गया, ये वाला इधर चला जाएगा। तो गामा कॉमन म्यू टू माइनस म्यू। ठीक है, ओके ना? कोई कहीं साइन कन्वेंशन की प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी, आई थिंक। फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, तो हम लोगों ने लिखा है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं इसमें। देखना, म्यू वन, म्यू वन अल्फा, in place of alpha, if angle is very small, then in place of theta, it we can write tan theta। यहाँ पे दो assumption है। एक बार थीटा को हमने, साइन थीटा को हमने थीटा मारा, बहुत छोटा था, इसलिए हम दोबारा में हम थीटा को क्या बोलते हैं, tan थीटा मान लेते हैं। इट इज tan, tan अल्फा प्लस म्यू टू tan बीटा equals to, equals to gamma, in place of gamma you can write tan gamma mu 2 minus mu 1, tan gamma mu 2 minus, in place of tan, in place of tan alpha we can write here this upon this, yani pn here, pn perpendicular upon base, o o on is what, u, सब लोग जानते हैं, इट इज यू, इट इज यू। यहां से यहां तक यू होता है, क्योंकि ये रेज इधर से चल रही है, तो इसे यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस यू प्लस, माइनस यू प्लस। फिर उसके बाद लिखेंगे हम म्यू टू टैन बीटा, टैन बीटा के प्लेस पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इमेज की पोल से डिस्टेंस क्या हो जाएगी बताओ? हम जानते हैं वी होती है, क्योंकि रे इधर जा रही है, इसलिए वी प्लस हो जाएगा वी, एंड ऊपर क्या हो जाएगा, पी एन इक्वल्स टू, पी एन इक्वल्स टू, यहाँ पे टैन गामा, इस गामा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ से यहाँ तक आर होता है, वो भी इस साइड में है तो प्लस हो जाएगा, फिर अपॉन में हो जाएगा आर, और ऊपर हो जाएगा पी एन म्यू टू माइनस म्यू वन, म्यू टू माइनस म्यू वन। देख लेना भाई लोग, सभी लोग, पी एन पी एन पी एन देख लेना, ये बीच में बराबर है, इसमें इसमें पी एन कॉमन लेंगे, डिवाइड करेंगे तो पी एन कैंसिल हो जाएगा। हम पूरे को हटा देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा म्यू वन, म्यू वन अपॉन माइनस यू प्लस म्यू टू अपॉन v is equals to म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेंगे तो मिल जाएगा म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। दिस इज द डेरिवेशन। ये डेरिवेशन है, बहुत आसान है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दो जगह एजम्पशन करना पड़ेगा हमको, दो जगह एजम्पशन करना पड़ेगा। एक जगह थीटा, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, then theta will be, sin theta will be equals to theta, and when theta is very small, theta will be equals to tan theta or tan alpha। Okay,
हो गया होगा आई थिंक, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। डेटा ओवर, ओके, रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना भाई। ओके डन एवरीवन। ओके ओके वेरी गुड। आई थिंक इट इज क्लियर। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। अभी म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। यहाँ पे एक चीज देखना, साइड बुक में क्या दिया हुआ है, साइड बुक में क्या दिया हुआ है वो आपको बता दूं। साइड बुक में भी दिया हुआ है कि ये रेयरर है फिर ये डेंसर है, ये रेयरर है ये डेंसर है, ये डेंसर है ये रेयरर। ओके, कैसे कैसे दिया हुआ है उन चीजों को समझ लेना। अगर आप साइड बुक पढ़ते हो तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। कैसे देखना कि ये अगर है, अगर ऐसा हमने लिया है इट इज रेयरर, इट इज डेंसर, यहाँ से रेज आ रही है तो ऐसे बेंड हो जा रही है, ये नॉर्मल है ना, बेंड हो जा रही है, ये डेंसर, ये रेयरर हो गया और ये डेंसर हो गया। इस पे कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सबके लिए फार्मूला सेम हो जाएगा ना। तो बस ध्यान ध्यान रखना कि इमेज कहाँ बनेगी। इमेज अगर बी नेगेटिव आता है इमेज उसी साइड बनेगी, तो उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट हो जाता है। ओके, वाईफाई का डाटा भी ओवर होता है क्या? अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ध्यान से, ये हमको डेरिवेशन समझना है। इसके बाद इसमें और भी है डेरिवेशंस, लेकिन सारे डेरिवेशन को हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कुछ इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स की। राइट डाउन क्वेश्चन, राइट डाउन क्वेश्चन। Light from a point source in air, light from point source in air, बस बोर्ड में ऐसे यही ड्राइव करना है, एनसीईआरटी में यही वाली डेरिवेशन। ठीक है, तो लिखो इसमें, लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर falls on a convex spherical glass, convex spherical glass, spherical glass दिया हुआ है, ये convex है, ये spherical glass दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू यहाँ पे लिख लो, within bracket mu is equal to 1.5. In the question it is given radius of curvature, radius of curvature that is 20 centimeter, radius of curvature 20 centimeter. The light, sorry, the distance of light source from the glass surface is 100 centimeter. U is equals to 100 centimeter. At what position is the image formed? At what position is the image formed? We have to find B. U के प्लेस पे आप माइनस रखोगे, बता इधर रखा हुआ जिधर से रे चल रही है, इस फार्मूले में पुट करके वैल्यू निकालोगे। यहाँ पे म्यू म्यू टू इज गिवन बिकॉज इट इज म्यू वन, इट इज म्यू टू, दिस इज म्यू टू इज 1.5 एंड म्यू वन इज व्हाट, म्यू वन इज 1, म्यू टू इज 1.5। कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा सभी लोग। खुद से करके दिखाओ।
म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। आर भी प्लस में होगा। mu2 1.5 upon v that we have to calculate minus mu1 is 1 upon, it is minus 100, it will be plus 100, 1.5 minus 1 upon 20, यहाँ पे 1.5 v plus 1 upon 100 that will be equals to 0.5 upon 20 और 1 upon 40। इसको यहाँ पे कर लेना 1.5 v is equals to 1 upon 40 minus 1 upon 100, 200, 5 minus 2, 3 upon 200, it is 1.5, v will be equals to 1.5 multiplied by 200 upon 2. It is 3 by 2, it will be 100, it will be plus 100 सेंटीमीटर। तो इस तरह का कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। you have any problem then you can ask। yes, very good, 100 centimeter, 100 centimeter is the answer, plus 100 you can take screenshot or you can write the answer is 100 centimeter। okay, next very important or you can say most important derivation, next most important derivation, जैसा कि हम लोग पहले भी बोला था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एक और है हम लोग, जिसको हम बोलते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला। राइट डाउन, लेंस मेकर्स फार्मूला, यानी लेंस जो बनाते हैं उनको क्या कौन से फार्मूले की जरूरत पड़ती है लेंस बनाने का। मीन्स वी हैव व्हेन वी नीड टू फिक्स द फोकस, सॉरी focal length of any lens in length, that what we need what we need that formula. Which formula? The formula is we are going to derive। okay, now write down lens maker formula। लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे कि दो चीजें हैं। लेंस, ये लेंस होता है, पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि ये लेंस होता है इस तरह से। द लेंस इज लाइक दैट, द लेंस इज लाइक दैट। क्या मतलब होता है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होता है ऐसे, और यहाँ पे ये एक, इसको मान लेते हैं कि ये नहीं था। तो अभी हम लोग जो डेरिवेशन किया हुआ है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल या कर्व्ड सरफेस, तो यहाँ से क्या होगा, ये इमेज ऐसे बनाना चाहेगा, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ती है रे एक बार फिर से यहाँ पे एक बार और रिफ्रैक्शन हो जाता है, तो ये एक बार और बेंडिंग हो जाती है। तो यहाँ पे एक्चुअल यहाँ पे बना रही होती है, बना नहीं पाती है, लेकिन इसीलिए इसको बोलते हैं आई डैश। और यहाँ पे एक्चुअल जा रही होती है तो एक्चुअली यहाँ पे बनती होती है, डॉट 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 लाइन हो जाएगी। दिस इज नॉट एक्चुअल बट एक्चुअल इज दिस। यहाँ से यहाँ तक वी बोलेंगे, यहाँ से तक वी डैश बोलेंगे। जहाँ इमेज बन रही थी पहले फर्स्ट सरफेस से, दिस इज यू वी एंड यू वी वी डैश। ओके, फर्स्ट हम वही यूज करेंगे कर्व्ड सरफेस के लिए, फिर कर्व्ड सरफेस के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी म्यू मानते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू, यहाँ पे म्यू मान लेते हैं। तो क्या होगा बताओ, अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें, इक्वेशन अगर आप लिखना चाहो तो सबसे पहले आप लिखोगे कर्व्ड सरफेस के लिए क्या होता था फॉर्मूला, वही वाला फॉर्मूला जो फॉर्मूला हम लोग होता था। क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले म्यू टू फॉर्मूला होता था म्यू टू अपॉन वी माइनस
म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ये फॉर्मूला होता था, है ना। इसमें चूंकि दो कर्व सरफेस हैं, ये फर्स्ट वाला है, इसको हम बोलेंगे आर, ये हमारा सेकेंड वाला है, इसको बोलेंगे आर टू। एक आर वन और एक आर टू। ओके, सबसे पहले क्या करो, आप फिगर बना लो, फिगर बना के फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। वीडियो में प्रॉब्लम है, क्लियर तो आ रही है भाई? इट इज क्लियर ना? इट इज क्लियर। ऑडियो, ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर। यस यस, टू मच क्लियर। ठीक। तो देखो, यहाँ पे बात आती थी कि अगर हम इसको, बाहर वाले को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाहर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम म्यू वन मान लें, रिफ्रैक्टिव जो हमने म्यू माना था इसको म्यू टू, तो क्या होगा, फॉर्मूला यही रहेगा, क्योंकि ये म्यू वन से म्यू टू में जा रही है। देखना ध्यान से, म्यू वन से म्यू टू में जा रही है, तो म्यू टू माइनस म्यू वन, यहाँ पे म्यू टू अपॉन वी, ये वाला वी ध्यान रखना, ये वाला वी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वी डैश हो जाएगा। क्यों, देखना, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था इस तरह से कि अगर ऐसा होगा, ये म्यू वन है, ये म्यू टू है, यहाँ से रे जा रही है ऐसे, तो दिस इज यू एंड दिस इज वी। यहाँ पे इस केस में वी नहीं है, बल्कि हमने क्या माना था कि ये पहली बार में कहाँ बनाना चाह रही थी इमेज, दैट इज एट वी डैश। तो यहाँ पे वी के प्लेस पे वी नहीं होगा, बल्कि वी डैश होगा। तो यहाँ पे म्यू टू बाद वाला म्यू टू अपॉन वी डैश माइनस म्यू वन अपॉन दिस यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। फिर दूसरी बार फॉर्मूला यूज करेंगे, द रे इज गोइंग, अब ऐसे रे जो है वो यहाँ से जा रही है, अब यहाँ से ऐसे ऐसे जा रही है, मतलब ये म्यू टू से अब म्यू वन में जा रही है। तो म्यू वन अपॉन वी, फाइनल इमेज यहाँ से यहाँ तक हमने क्या माना था, वी माना था, फाइनल इमेज दैट इज वी, दैट इज म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू, जिसमें जा रही, इससे जा रही होगी, म्यू वन अपॉन वी डैश दैट इज इक्वल टू म्यू टू माइनस, यहाँ पे देखना, यहाँ पे हो जाएगा हमारा म्यू वन माइनस म्यू टू, बिकॉज फाइनल इज म्यू टू, म्यू वन ना, म्यू वन माइनस म्यू टू, कहाँ से कहाँ जा रहा है, किसमें जा रहा है, म्यू वन में, तो म्यू वन अपॉन बी माइनस म्यू टू अपॉन बी, यहाँ पे हो जाएगा म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन, यहाँ पे आर वन रहेगा, यहाँ पे आर टू रहेगा। ध्यान से देख लेना, ये म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन, क्योंकि फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे आर वन हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर टू। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि आंसर कितना आ रहा है। यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, या सब ऐड कर देंगे, तो ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस में और ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू वन अपॉन बी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, कॉमन चाहोगे तो म्यू टू, ऐसे इसको रिवर्स करें, बिकॉज वी आर गोइंग टू ऐड ना, वी आर गोइंग टू ऐड, दैट मीन्स इसको रिवर्स कर देंगे, म्यू टू माइनस म्यू वन, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस टाइम्स म्यू टू अपॉन म्यू वन, ऊपर भी म्यू टू अपॉन म्यू वन है, तो आप यहाँ पे चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, व्हाट, ये ले सकते हैं कॉमन म्यू टू माइनस म्यू वन, यहाँ पे क्या बचेगा, वन अपॉन आर वन माइनस, बिकॉज हेयर इट इज माइनस वन अपॉन आर टू, ये हो जाएगा। यहाँ से म्यू वन कॉमन ले लेंगे, तो म्यू
म्यू वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू, यहाँ पे म्यू वन से डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, म्यू वन कॉमन ले लिया था हमने, लेकिन बाद में हम डिवाइड कर दे रहे हैं इसको, एक ही स्टेप पे कर दे रहा हूँ सारा, तो हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। तो इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू, ब्रैकेट हटा ही देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, तो डिवाइड कर दें तो आ जाएगा म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस वन, म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, इसलिए इसको याद रख लेना। ये अभी तो कल टोटल नहीं है, अभी याद रखना, अभी ये है, अभी इसको इसके आगे भी है थोड़ा सा, इसके आगे भी थोड़ा सा और है, बस इतना अभी लिख लो। इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ सकते हो, यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क। डन। सेकंड इक्वेशन ये वाली, अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, पहले लिख लो, सारे लोगों को लिख लेना था, उसके बाद फिर से समझाया था। सेकंड इक्वेशन में प्रॉब्लम है, ओके, पहले आप लोग लिख लो इसको, उसके बाद डन। अमित यादव, वेरी गुड, ओके ओके, वेरी गुड। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन की, व्हाट इज सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन इज दिस। यहाँ पे एक बात याद रखना कि हम लोगों ने, फिर से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, कि हम लोगों ने क्या किया था अभी, ये डेरिवेशन की थी हम लोग, दिस इज म्यू वन, दिस इज म्यू टू, यहाँ से जा रही थी यहाँ, दिस इज यू एंड दिस इज वी। मामला क्या था, वी म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन, सॉरी म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, यहाँ से आ रहा है ना। देखो यहाँ पे अगर देखोगे, म्यू वन कहाँ से चल रही, किस में रे जा रही है, म्यू टू में जा रही है, रे इज गोइंग into the medium that has refractive index mu 2 upon v, this mu 2 upon v कहाँ जा रही थी बात उसकी, और वही वहां पे लोकेशन, वही लोकेशन क्या है v, और यहाँ पे इनिशियल दैट इज mu 1 अपॉन, लेकिन दोबारा में ऐसे जा रही है, ऐसे फ्रॉम दिस मीडियम टू दिस मीडियम, यहाँ पे लेंस के अंदर का मीडियम कौन सा था, दैट इज म्यू टू, यहाँ पे लिया गया म्यू टू से म्यू वन में जा रहा है, कहाँ जा रही है, म्यू वन अपॉन वी माइनस, किससे जा रही है, म्यू टू अपॉन यू। ध्यान रखना पहले वाले टाइम में हमने वी नहीं माना था, वी डैश माना था, इसलिए यहाँ पे वी डैश हमने ले लिया। दूसरे वाले के लिए इमेज जो होगी, इमेज वो वी डैश हो जाएगी, क्योंकि पहले से जो इमेज बनेगी दूसरे के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी। पहले के लिए, पहले की जो इमेज बन रही थी, पहले वाले के लिए, पहले वाले के लिए जो इमेज बन रही है इक्वेशन में, दिस इज द इमेज फॉर्म बाई फर्स्ट रिफ्लेक्शन, सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए ये इमेज है, तो सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए ये पहले वाले का जो इमेज होगा दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये फिर इन दोनों के इक्वेशन को हमने यहाँ पे म्यू वन कहाँ से जा रही है, म्यू टू से म्यू वन में जा रही है, म्यू वन अपॉन वी, म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन वी डैश, वी डैश इज व्हाट इज, इट इज द object for second reflection, and v dash, v dash is what, v dash is object for second reflection and v dash is image for first reflection, clear। I'm audible ना,
आई एम ऑडिबल? ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं। यहाँ पे एक चीज देखते हैं हम लोग इसको। यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, क्या हम जानते हैं बहुत अच्छे से, 10th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, व्हेन रेज कम पैरेलल it will intersect at a point and that is called focus, and the distance from the optical center to the focus is called focal length. When the form at focus, ये बात सब लोग जानते हैं, when the object is at infinity the image will form at focus. तो ये चीजें आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे when u is equals to infinite then v will be equals to f. You can put here in the equation 1 upon, in place of v we can write f upon 1 upon infinite is equals to mu2 upon mu1 minus 1 upon r1 minus 1 upon r2, 1 upon r1 minus 1 upon r2. mu2 upon mu1 minus 1, note it out. mu2 upon mu1 minus 1 upon r1 minus 1 upon r2, ये क्या है पहले यहाँ पे अगर देखा जाए तो दिस इज 1 upon b minus 1 upon u. This is 1 upon b minus 1 upon u. In place of mu2 upon mu1 minus 1 upon r1 minus 1 upon r2. In place of that, we can write 1 upon b minus 1 upon u. Here, 1 upon f and 1 upon infinity is 0. 1 upon f minus, it is 1 upon infinity is 0. 1 upon f equals to 1 upon b minus 1 upon u. This is the length formula. Okay, and this is length maker formula. यहाँ आप लिख सकते हो इस तरीके से, इसको एक बार फिर से लिख सकते हो, 1 upon f is equals to mu2 upon mu1 minus 1 upon r1 minus 1 upon r2. तो ये हमारा लेंथ मेकर फार्मूला है और ये हमारा क्या है, लेंथ फार्मूला। लेंथ फार्मूला को हम जैसे मिरर फार्मूला ड्राइव किया था हम लोगों ने, याद है जिस तरह से आपने मिरर फार्मूला ड्राइव किया था उस तरह से लेंथ फार्मूला भी ड्राइव करते हैं, या फिर हम लेंथ मेकर फार्मूले को मॉडिफाई करके हम लेंथ फार्मूला बना लेते हैं। तो ये दो तरीके से हम कर सकते हैं इसको, चाहे तो दोनों मेथड में कोई भी मेथड यूज कर लोगे तो हमारा मेथड सही माना जाएगा, वो आंसर हमारा सही माना जाएगा। ओके, नोट इट डाउन। वीडियो इज क्लियर ना? वीडियो इज क्लियर? यहाँ मेरे को ब्लर ब्लर आ जाती है बार बार तो। Okay, okay, done. If it is done, it is very good. Now we will proceed further. सौम्या पांडे, नेट खराब है तो नेट लगवा लो, छत पे टावर लगवा लो। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे और चलते हैं, कुछ और पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, आज यहीं तक रहते रहते हैं टॉपिक। मैं देखा नहीं, टाइम टाइम हो गया। एक क्वेश्चन तुम लोग लिख लो, उसके बाद डन करते हैं, कल हम लोग इसको फिर सॉल्व करके तुम लोग आने ना। एक क्वेश्चन लिख लो जल्दी से, एक क्वेश्चन लिख लो। थैंक यू अभी नहीं, पहले लिख लो उसके बाद थैंक यू। The radius of curvature of the faces
the radius of curvature of the faces of a double convex lens of a double convex lens are 10 centimeter and 15 centimeter. 10 centimeter and 15 centimeters. If focal length is 12 centimeter, if focal length is 12 centimeter, what is the refractive index of the glass? What is the refractive index of the glass? What is the refractive index of the glass? Okay. Answer is 1.5. mu equals to 1.5. आंसर इज mu equals to 1.5. इसको सॉल्व करना, फिर उसके बाद हम लोग मिलते हैं कल. ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा. If you have any problem, then you can ask tomorrow. Okay, thank you.